بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا وہ واقعہ ہے جو قیامت تک نہیں بھلایا جا سکتا، جس میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے تھے۔ یزید خلیفہ کے منصب پر براجمان ہو چکا تھا اور اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام پر ڈٹ جانے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے اپنے نانا کے حق پر مر مٹنے اور اسے بچانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ والد اور بھائی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کمزور ہو چکے ہیں۔ اس نے سوچا اپنی طاقت کو مزید بڑھانے اور حکومت کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے راستے سے ہٹانا فائدہ مند ہوگا، لیکن اسے شاید معلوم نہیں تھا کہ سردار جنت کے لیے دنیاوی خلافت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کوفہ والوں کے سینکڑوں خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو موصول ہوئے، جن میں یزید اور ان کے اعلی کاروں کے مظالم بیان کیے جاتے تھے اور دین اسلام سے درپیش خطرات سے آگاہ کیا جاتا تھا۔ ایک اطلاع آپ کو یہ بھی ملی کہ شراب نوشی عام ہو چکی ہے۔ اپنے والد امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جائے شہادت پر جانے اور اپنے لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ نے مدینہ سے کوفہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ 28 رجب سن 60 ہجری کو آپ نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے کوفہ کی جانب سفر شروع کیا۔ حضرت امام حسین براستہ مکہ اپنے 18 اہل بیت اور 50 صحابہ کرام کے ساتھ کربلا پہنچے۔ 8 ذی الحجہ کو آپ کو کوفہ والوں کی عہد شکنی کا اندازہ اس وقت ہو چکا تھا جب آپ نے اپنے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنی، لیکن آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ شاید آپ اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشین گوئی کا انتظار کر رہے تھے جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا تھا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ نے ام سلمہ کو مٹی دی اور کہا تھا، یہ کربلا کی مٹی ہے، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے جگر کا گوشہ اور میرے گھر کا پھول حسین ابن علی شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل بیت کے ساتھ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا پہنچے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کی سواری کربلا کے میدان میں پہنچی تو آپ کے گھوڑے پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی، جیسے کہ وہ آپ کو یہاں سے لے کر دور بھاگنا چاہتا ہو۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے تو معلوم ہوا کہ یہ سرزمین کربلا ہے۔ آپ نے فرمایا قافلوں کو یہاں روک دیا جائے، ہم یہیں پر قیام کریں گے۔ اصحاب نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور کربلا کے بنجر صحرا میں خیمے لگا دیے۔ آپ نے آسمان کی جانب دیکھ کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے نانا کے دین کی حفاظت فرما اور اسے زندہ اور آباد رکھ۔ آپ کو اطلاع مل چکی تھی کہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل، جن کو آپ نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا کہ وہاں کے حالات معلوم کر کے آپ کو خبر دیں، ان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ کوفہ کے لوگ جو آپ کو بار بار خطوط بھیج رہے تھے، وہ کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے خفیہ لالچ سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بالکل اکیلا چھوڑ چکے تھے اور وہ کوفہ کی گلیوں سے بالکل ناواقف تھے۔ ابن زیاد کے ایک سپاہ سالار نے ان کو امان کا وعدہ دے کر گرفتار کیا اور بعد میں ان کو کوفہ کے محل کی چھت سے دھکا دے کر شہید کر دیا۔ اپنے چچا زاد بھائی کی شہادت کا صدمہ اور کوفہ والوں کی بدعہدی کا افسوس آپ کو آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا، اور مقصد اتنا بڑا تھا کہ آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ سے سینکڑوں خطوط موصول ہوئے۔ ان کے جواب میں آپ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ جو خط بھیجا، اس کے الفاظ کچھ یوں تھے۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے خاندان کے سب سے با اعتماد چچا زاد بھائی کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ مجھے آپ کے حالات سے آگاہ کرے۔ اگر اس نے مجھے یہ خبر دی کہ آپ لوگ وہی ہو جنہوں نے مجھے خط لکھے تو میں آپ کے ہاں آؤں گا۔ امام صرف وہ ہے جو کتاب خدا پر عمل پیرا ہو، عدل قائم کرے، دین حق پر یقین رکھتا ہو اور اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دے۔ لیکن افسوس، سفیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ خیمے لگ چکے تھے،
और तरतीब कुछ यूं थी कि सबसे आगे पहला खैमा हजरत अब्बास का था। हजरत अब्बास का नाम आते ही जो सबसे पहले अल्फाज ज़हन में आते हैं वो है वफा, सच्चाई, बहादुरी और हक पर डट जाना। ये ऐसे शहीद हैं जो गाजी कहलाते हैं। हजरत अब्बास हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की दूसरी बीवी उम्मुल बनीन से हैं। हजरत अब्बास अलमदार करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन की फौज के अलमदार थे। यजीदी फौज 3 मुहर्रमुल हराम को इमाम की फौज के रास्ते में पड़ाव डाल चुकी थी। हालात कशीदगी की तरफ जा रहे थे। हजरत इमाम हुसैन ने अपने असहाब और अहले बैत को इकट्ठा किया। आपने फरमाया, मैं आप सब लोगों से अपनी बैत उठाता हूँ, आप आज़ाद हैं, जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। सबने कहा, हम आप पर जान निसार करेंगे, अपने खून के आखिरी कतरे तक अपने दीन की खातिर लड़ेंगे। यजीद की बैत का मतलब था कि उसके तमाम इक़दामात की तौसीक जिसका दीन इस्लाम मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लिहाजा आपके पास 2 रास्ते थे, या वापस चले जाएं या हक पर रहते हुए जंग लड़ें। लेकिन मालूम हुआ कि वापसी का रास्ता यजीदी फौज बंद कर चुकी है। अब सिर्फ जंग थी या यजीद के हाथ पर बैत। इब्ने ज़ियाद कूफा से हजरत इमाम हुसैन को बागी कहलवाकर कत्ल का फतवा ले चुका था और उसने मजीद फौज करबला रवाना कर दी थी ताकि यजीद की खुशनुदी हासिल कर सके। रिवायात के मुताबिक हजरत इमाम हुसैन के 72 अफराद के मुकाबले में इब्ने ज़ियाद ने 4 मुहर्रम सन 61 हिजरी को बहुत बड़ी फौज का लश्कर लेकर कूफा से रवाना हो गया। हजरत इमाम हुसैन के साथ यजीदी फौज के मुज़ाकरात जारी थे। 7 मुहर्रमुल हराम को यजीदी फौज ने ताकत के नशे में मस्त होकर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पैगाम भेजा, आप अपने खैमे पानी के करीब से उठा लें, और रास्ते में यजीदी फौज को बिठा दिया गया। इमाम ने यह पानी बंद करने का जुल्म सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर लिया कि कहीं बाद में लोग ये न कहें कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और यजीदी फौज में तनाज़ा पानी का था। आपने जुल्म बर्दाश्त किया और अपने असहाब के खैमों को पानी से दूर ले गए। तपते सहरा में सब लोग पानी की प्यास से तड़पने लगे। लोगों ने पानी का तकाजा किया, लेकिन यजीदी फौज ने इमाम पर पानी बंद कर दिया। बच्चों से ज्यादा दीन इस्लाम की फिक्र थी। ये किन जालिमों के हाथों इक़्तिदार आ गया है। ये लोग ज़माना जाहिलियत से ज्यादा खतरनाक और गुमराह थे। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी भी तौर यजीद के हाथ पर बैत करने के लिए राजी न थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हमारा रास्ता छोड़ दो, हम कूफा या कहीं और चले जाते हैं। लेकिन यजीदी फौज किसी बदकिस्मत जानवर की तरह ताकत के नशे में चूर थी। उसके सरबराह ने कहा, 2 ही रास्ते हैं, अब या तो बैत कर लें या जंग के लिए तैयार हो जाएं। 9 मुहर्रमुल हराम को शिमर यजीद के साथ करबला के मैदान में दाखिल हुआ। बाज़ रिवायात के मुताबिक 9 मुहर्रमुल हराम को यजीद की फौज में मजीद जंगजू शामिल कर दिए गए थे जो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 72 साथियों के साथ जंग करने आए थे। शिमर ने आते ही अपनी अय्यारी और मकारी का इस्तेमाल करना चाहा और उसने हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके भाइयों के नाम अमान नामा भिजवाया कि आप लोग इस तराई से अलग हो जाइए, आपको अमान है। शिमर ने कहा, आपकी वालदा मेरे कबीले से है और इस रिश्ते से मैं आपका मामू लगता हूँ, लिहाजा आपको आपके भाइयों समेत अमान देता हूँ, आप जहाँ जाना चाहें चले जाइए। हजरत अब्बास, जिनका नाम ही वफा का पैकर है, वो कहाँ ऐसी बातों में आकर अपने भाई को छोड़ने वाले थे। आपकी माँ का जिक्र आया तो हजरत अब्बास ने शिमर को कहा, ओ मलून, अपनी नापाक जुबान से मेरी माँ का नाम मत ले। उन्हीं की तरबियत और हुक्म से आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। 9 मुहर्रमुल हराम की रात हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यकीन हो गया कि यजीदी फौज आपका खून बहाने के दर पे है। आपने अपने तमाम असहाब और अहले बैत को इकट्ठा किया और फरमाया, आप में से जो जाना चाहे जा सकता है। दुश्मन अपने लिए जहन्नम खरीदना चाहता है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे नाना के उम्मती जहन्नुम से बच जाएं, लेकिन वो हमारे खून के प्यासे हैं। रिवायात में आता है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोशनी मध्यम करवा दी कि अगर कोई जाना चाहे तो चला जाए। कुछ देर बाद आपने अपने बावफा साथी और भाई से कहा, अब्बास, रोशनी बढ़ा दो। यानी आपको ये यकीन था कि ये भाई मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। 10 मुहर्रमुल हराम का सूरज तुलू हुआ। तमाम अहले बैत और असहाब ने रात जाग कर गुजारी थी। सब लोग प्यास से निढाल थे। 7 मुहर्रमुल हराम की शाम को हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म से हजरत अब्बास अपने चंद अफराद के साथ यजीदी फौज को धकेलते हुए फरात से पानी का मशकीज़ा भर लाए थे। लेकिन 10 मुहर्रमुल हराम को फौज कई गुना बढ़ चुकी थी।
शिमर रास्ते में हायल था। प्यासे बच्चों की डूबती चीखों और सिसकियों ने पूरे माहौल को पुरआशोब बना दिया था। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की 4 साला बेटी हजरत बीबी सकीना प्यास से निढाल थीं। उन्होंने अपने चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से पानी का तकाजा किया। हजरत अब्बास बीबी सकीना और अली असगर के लिए पानी लेने निकले। आपके एक हाथ में अलम था और दूसरे में तलवार थी। आपने मशकीज़ा अपनी पुश्त पर लटकाया और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की इजाजत से पानी लेने रवाना हो गए। यजीदी दुश्मन घात लगाए बैठे थे। अलीजादे की हैबत इतनी थी कि कोई सामने आने की जुर्रत नहीं करता था। यजीदी फौज को पीछे धकेलते हुए हजरत अब्बास पानी तक पहुंच गए। आपने मशकीज़ा पानी से भरा और घोड़े पर अपने सामने रख लिया। हजरत अब्बास घोड़ा तेजी से खैमों की जानिब दौड़ा रहे थे कि किसी तीरंदाज ने एक तीर मशकीज़े पर मारा। पानी ज़ाय होने लगा। आपने अपने मौला का अलम नीचे नहीं किया। अपनी जान की परवाह किए बगैर तलवार वाला हाथ पानी के मशकीज़े की उस जगह पर रखा जहां से पानी बह रहा था ताकि पानी ज़ाय ना हो, और परचम बुलंद रखा। तलवार हाथ में ना होने का फायदा उठाते हुए एक यजीदी सिपाही ने, जो दरख्त की आड़ में छुपा हुआ था, तलवार से एक जोरदार वार किया और जिस हाथ में अलम था वो बाजू शहीद कर दिया। हजरत इमाम हुसैन ने दर्द की शिद्दत के बावजूद अलम दूसरे हाथ में थाम लिया। चंद और तीर मशकीज़े पर लगे और पानी तेजी के साथ ज़ाय होने लगा। इसी असना में आपका दूसरा बाजू भी शहीद कर दिया गया। अलीजादे को बेदर्दी से जख्मी कर दिया गया था और आपके दोनों बाजू शहीद हो चुके थे, लेकिन अभी आप जिंदा थे। शायद इसी वजह से आपको गाजी का लक़ब दिया जाता है। एक बदबख्त ने पीछे से आपके सर पर बर्छी की ज़रब लगाई और आप शहीद हो गए। एक एक करके सारे जानिसार आप पर जान कुर्बान कर रहे थे। हजरत इमाम हुसैन आखिर तक उन जालिमों को यही तरगीब देते रहे कि ऐ जालिमों, क्यों अपने लिए जहन्नम खरीदते हो। मगर आपकी एक ना मानी गई और एक एक करके आपके सभी साथियों को शहीद किया जा रहा था। बिलाखिर आप लड़ने के लिए करबला के मैदान में उतरे और यजीदी फौज की सफ़ें उलट दी। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहर बनकर यजीदी फौज पर टूटे। 10 मुहर्रमुल हराम असर की नमाज का वक्त हुआ। आप घोड़े पर से उतरे, रेत से तयम्मुम किया और नमाज के लिए खड़े हो गए। यजीदी फौज के बुज़दिल सिपाही जो करीब ही मुंडला रहे थे और हमला करने की जुर्रत नहीं करते थे, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के नमाज में मसरूफ होने की वजह से आप पर हमला करने की जुर्रत जता पाए और चारों तरफ से आप पर तीरों की बरसात कर दी। नमाज में मसरूफ होने की वजह से तीरों की तकलीफ का अंदाजा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को नहीं था। यजीदी बदबख्तों को शायद मालूम नहीं था कि ये अलीज़ादा है, और हजरत अली भी नमाज में मशगूल होते तो इस कदर खुदा की याद में डूब जाते कि तकलीफ का अंदाजा नहीं होता था। जब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सजदे में गए तो शिमर ने अपनी तलवार से ज़रब लगाई और आपका सर मुबारक जिस्म से अलग कर दिया और उसको नेज़े पर बुलंद किया। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये सारा मंजर देख रही थी। खैमों से बीबियों के रोने की आवाज़ें आईं तो यजीदियों ने खैमों को आग लगा दी। ख़वातीन के सरों से दुपट्टे छीन लिए और सबको कैदी बनाकर यजीद के दरबार में पेश कर दिया। तो दोस्तों, ये थी वाक़या करबला पर एक मुख्तसर सी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।